So we have covered a lot of properties of numbers in the last lecture. This session is going to be more about solving questions, properties of numbers too. Most of these are past CAT questions. Some of these are ZAT, IFT questions as well. तो exam के questions बना रहे हो. You don't have to worry कि easy या difficult है. In last lecture I had shown analysis. CAT 2023 slot 1, slot 2 and slot 3. If I add numbers के question and if I add geometry के questions, तीनों सेट मिला के ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन ज्यादा आए थे. दैट्स ऑल. अदरवाइज नंबर्स और ज्योमेट्री लगभग बराबर आया है. नंबर्स में कम फॉर्मूले होते हैं, कम प्रॉपर्टीज होते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अबाउट फैक्टर्स or counting factors. Geometry में it could be about right angle triangle, equilateral triangle, circle, quadrilateral. So geometry is much more vast as compared to numbers. Questions के मामले में तीनों को मिलाकर geometry में केवल 2 questions ज्यादा थे. So start. A historic question. Read, break down the question, understand the language and try. You have 2 minutes. Comment your answers once you are done. No, not necessary.
for a positive integer n, let Pn denote product of its digits. Sn denotes sum of its digits. The number of integers between this and this. When you use the word between, वो 10 के बराबर नहीं हो सकता. It will start from 11. It cannot be equal to 1000. It can go to 999. So 111 से 111 से include करके 999 तक we can go. We can go till 999. अब क्वेश्चन ये है, Pn Sn is equal to added is equal to n itself. Can I say if something starts from 11 goes to 999? दो possibility है. The number can be a 2-digit value or the number can be a 3-digit value. दोनों check कर लेते हैं. If the number is a 2-digit value, let us say a b, तो अब ये कह रहे हो a into b plus a plus b is equal to number itself. अगर कोई number 23 होता है तो that is written as 2 into 10 plus 3 in the simplified or expanded form. अगर कोई number 37 होता है so 3 into 10 plus 7. तो जो ये n का वैल्यू है it will be 10a plus b. देखो ये b और b कैंसिल हो गया. मूव a ऑन दिस साइड, आपके पास आ गया 9a इज इक्वल टू a b कट गया, b इज इक्वल टू 9 आ गया. यू आर सेइंग जब तक एज लॉन्ग एज b का वैल्यू 9 है, a कैन बी एनीथिंग. तो आप 19 ले लो, 29 ले लो, 39 ले लो, आप 99 ले लो. मेरे पास 9 नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं that fulfill the required property, desired property. Product of digits, addition of digits is equal to number. तो 2 डिजिट वाले वैल्यू मेरे पास 9 आ चुके हैं. If I imagine a 3 digit value, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, a into b into c प्लस क्या होगा a plus b plus c, और क्या होगा 100a plus 10b plus c. थोड़ा ध्यान से, थोड़ा संभल के प्लीज ऑब्जर्व. This is the expanded value of n. Right side में I want the actual number n. n is equal to ABC. सबसे पहले c कट गया. अब a और b को यहाँ भेज दो, a को और b को उधर भेज दो, तो you have 99a plus 9b is equal to a into b into c. अब basically I have 9 times of 11a plus b. मुझे यहाँ पर 9 का मल्टीपल चाहिए. देखो try putting in some numbers there, कुछ values put करके देखो. Are you able to create more possibilities a b और c के? देखो, give it a shot, क्योंकि now you are stuck with 3 variables और एक ही equation है. पिछले वाले में do you see सब जगह से कैंसिल हो गया था a सब जगह कैंसिल हो गया, तो I got value of b is equal to 9. a can be anything, no number. अभी आप कुछ कर सकते हो क्या? अंडरस्टैंड, a b and c आर डिजिट्स. जो लेफ्ट साइड में आपने देखा है a b and c आर डिजिट्स. a b and c आर डिजिट्स. अभी आपको केसेस बना बना के चेक करने पड़ेंगे. See, if I imagine, मैं अगर इमेजिन करूं c is equal to 9 है कि नहीं, I do not know, क्योंकि तीनों के मल्टीपल में 9 चाहिए. तो मैं इमेजिन कर रहा हूं अगर c 9 है तो I have a into b is equal to 11a plus b. 11a plus b. अब देखो इसको आप सॉल्व कर पाते हो क्या? Is there a way for you to solve this? इसको मैंने इस तरफ मूव कर दिया, 11a plus b माइनस ए बी. थोड़ा ध्यान देना, सीखना इन चीजों को. यहां से मैंने फर्स्ट और लास्ट में से a कॉमन ले लिया. आई हैव a कॉमन, आई हैव a कॉमन. वैसे ऐसा एक भी नंबर नहीं बनता, आई हैव ट्राइड दिस मेनी टाइम्स, एक भी नंबर नहीं बन रहा है. इफ आई टेक आउट a कॉमन, बच गया 11 माइनस b. देखो हाउ डू वी जनरेट दिस. यहाँ पर प्लस b है. देखो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं माइनस b लिख के माइनस बाहर लगा रहा हूँ. यहाँ लगा दिया मैंने 11 और यहाँ लगा दिया मैंने 11. ये 0 है.
This is the method of creating integer solutions through multiplications. आपने integer solution कहाँ देखा? Linear equation में ax plus by is equal to c में. I am showing you a new way to generate integer solutions. ऐसा common लेके तो आपका आ जाएगा a minus 1 into b minus 11 is equal to 11. एक ही पॉसिबिलिटी है a और b को 0 0 होना पड़ेगा to make it 11. और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं. तो दूसरा पॉसिबिलिटी अगर आपको देखना है, इफ आई राइट इट एज 11 into 1, देखो ये 1 बनाने के लिए a को 12 होना पड़ेगा. कैन अ डिजिट बी इक्वल टू 12? नो. b को होना पड़ेगा 22. तो एज फार एज डिजिट्स को ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट साइड में आपका हंड्रेड्स में है और लेफ्ट साइड में डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है. ये दोनों कभी बराबर नहीं होने वाले. देयर आर ओनली 9 आंसर्स पॉसिबल. 19, 29, 39, 49, 59, so on so until 99. 3 डिजिट में पॉसिबल नहीं है. आपने c को 9 लिया. अगर आप c को 9 नहीं लेके c को 3 लेते हो तो b और a में से लेट हो जाए. 1 नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3. और तरीके चाहिए लेट अस से. ये नहीं समझा, ये तो आपको पूरा मेरे को सिखाना पड़ेगा इन अ पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ फैक्टर्स. ये पूरा सीखोगे आप इन फैक्टर्स. यू विल लर्न ऑल ऑफ दिस इन फैक्टर्स. लेट अस से मैं ट्रायल एरर दिखाना चाहता हूं आपको. लेट अस से मैंने a को और b को 1 1 ले लिया. इमेजिन a और b को मैंने 1 1 ले लिया. इधर आ जाएगा 1 into 1 into, क्योंकि ये 99 plus 9 है तो ये 100 में चला गया. मैंने a को 1 ले लिया, b को 2 ले लिया. देखो मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ 1 and 2, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1 and 2. इधर आ जाएगा 1 into 2. आपको दिख रहा है c फिर से 50 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि राइट साइड में 100 से ऊपर है. राइट साइड 100 से ऊपर, तो c को 50 से ऊपर जाना पड़ेगा. जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे a और b को, c उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा. मिनिमम वैल्यू a और b की 1 भी आ रही है आपकी, तो आपका c 100 तक चला गया. a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2. देखो अच्छा मैं और बड़ा ट्राई करता हूँ. a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 10. क्यों? क्योंकि a बड़ा तो 99 टाइम्स, a 1 b 9, तो देखो कितना, b 10. तो आ गया आपका 1 into 10 into, आपको ये हमेशा 9 का मल्टीपल लगेगा ना, क्योंकि सामने 9 का मल्टीपल है, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसा कोई पेयर है ही नहीं a b और c का, तो केवल 2 ही डिजिट नंबर बन सकते हैं इस टाइप के. ये कैट लेवल, दिस इज कैट लेवल. आप और हम बुक्स में क्या सॉल्व करते हैं, एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकालें, ये बनेगा एलसीएम अच्छे से नहीं, बनाने पड़ेंगे. वो जो राइट साइड बॉटम पार्ट में जो मैंने बॉक्स बना रखा है येलो कलर का, उससे अच्छे से लिख लो. वील डिस्कस दैट वन मोर टाइम वंस यू आर इन फैक्टर थ्योरम्स. Confirm done, so we can go to the next question. कैट में ये क्वेश्चन 4 मिनट तक लेगा. Try this. Which of the following numbers is are not prime? इनमें से कौन से नंबर्स प्राइम नहीं है? When is a number prime? A number divisible by 1 and itself only. A number that has 2 factors is said to be prime. तो आपको चेक करके बताना है आर दीज नंबर्स प्राइम और नॉट. जो नहीं है उनको आपको आंसर में टिक करना है.
तो देखो बेसिकली द क्वेश्चन इज अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट. अब आप याद करके बताओ, डू यू रिमेंबर अ डिविजिबिलिटी टेस्ट लाइक दिस? व्हेन x हैज अ पावर ऑड, y हैज अ पावर ऑड, बीच में प्लस साइन है, it is divisible by x plus y. x has a even power, y has a even power, बीच में माइनस साइन है, it is divisible by x plus y, also x minus y. More. अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा. There is no confirm rule. अगर यहाँ पर पावर इवन है और यहाँ पर भी पावर इवन है, you cannot be sure ये x plus y से डिवाइड होगा. Even power with addition, there is no confirmed rule. यहाँ तो हर जगह प्लस साइन है. Now please observe, ये नंबर ऑलरेडी ऑड है, इट इज ऑलरेडी ऑड. 2 to the power ऑड प्लस 1 to the power ऑड. 1 का तो कोई पावर रखो, कौन मना कर रहा है आपको? तो ये पक्का डिवाइड होगा 2 plus 1 3 से. ये पक्का 3 से डिवाइड है, सो इट इज नॉट अ प्राइम. ये प्राइम नहीं है, तो ये मेरे आंसर का हिस्सा होगा. इट कुड बी 1 and 2, 1 and 3 और 1 2 and 3. ये नंबर प्राइम नहीं है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस. अब ये इवन पावर है, इवन का तो कोई रूल होता नहीं है. लेकिन आप अगर ध्यान दो, मैंने यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन ले ली, ऊपर बच जाएगा 2 5 0 1 प्लस 1 की पावर मैंने 2 5 0 1 ले ली, 2 5 0 1. नाउ कैन आई से ये 4 है, 4 की पावर ऑड, 1 की पावर ऑड, तो ये पक्का डिविजिबल है 4 plus 1 5 से. ये 5 का मल्टीपल है, तो अगर 5 का मल्टीपल है तो प्राइम कैसे हो सकता है? So either the answer is this or the answer is this. अब यार ये भी तो odd है, is odd. 2 to the power odd plus 1 to the power odd is divisible by 2 plus 1. It is divisible by 3. इनमें से कोई भी नंबर प्राइम नहीं है. These numbers is prime. So what concept are we applying? We are applying concept of polynomials and divisibility through numbers. None of these numbers is prime. The sum of 32 consecutive natural numbers is a perfect square. What is the least possible sum of smallest and largest of the 32 numbers? ऐसा smallest and largest आते ही लोग पैनिक कर जाते हैं. It sounds like maxima and minima. देखो, आप ट्राई करो. Does it make any sense to you? How would you approach this particular problem? ट्राई करो एक बार आप. There are many different schools of thought. कई लोग कहते हैं numbers के lecture पहले होने चाहिए सबसे, so that people become comfortable with numbers, so that people could solve questions on numbers. उल्टा बेटा numbers का algebra के बाद होना चाहिए, because lot of concepts of algebra are useful in such questions.
So देखो, first of all, when you say consecutive natural numbers, so you're basically telling me they are in a AP. 1 2 3 4 consecutive है, +1 +1, they are in a AP. तो AP का सम कैसे लिखते हैं? if you remember, अगर मैं पहले नंबर को assume कर लूं n, दूसरा n+2, n+1, तीसरा n+2, तो अगर 32 नंबर्स है तो आखिरी नंबर n+31 होगा. तो डू यू रिमेम्बर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर n प्लस n प्लस 31 अपॉन 2. इसको हम एवरेज कहते हैं. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 32 numbers are there. तो this is the addition. ये एडिशन खुद क्या है? ये एडिशन खुद किसी वैल्यू का स्क्वायर है. तो अब देखो, ये आ गया आपके पास 2n प्लस 31 इंटू 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. अब अगर मैं रूट ओवर लेता हूं तो डू यू अंडरस्टैंड, ये जो नंबर है 2n प्लस 31, दिस मस्ट बी ए स्क्वायर. ये स्क्वायर बनेगा तो आपको सारे वैल्यू मिल जाएंगे n के. ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं. मुझे क्या निकालना है? व्हाट डू आई नीड? मैक्सिमा एंड मिनिमा. आपको चाहिए तो मैं ऑप्शन से प्रूव करा सकता हूं. कैन आई से ये मैक्सिमा और ये मिनिमा यही है ना? व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर? यही तो है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट. ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. अब देखो, ये नंबर खुद क्या है? ऑड है. इनमें से देखो, ये ऑड नहीं है, ये ऑड नहीं है, तो आंसर ये हो सकता है और ये हो सकता है. ये छोटा आंसर है. ऑल हैव टू डू इज, मुझे कंफर्म करना है क्या वैल्यू 49 हो सकती है. इफ आई सब्ट्रैक्ट 49 तो 2n क्या आ गया? 18. n क्या आ गया? 9. तो डज इट वर्क? यस. आपको मैक्सिमा और मिनिमा ही ऐड करना था ना. मैक्सिमा मींस हाईएस्ट वैल्यू n प्लस 31, मिनिमा मींस n. तो वही तो आपका वैल्यू यहाँ पे. आपको ये स्क्वायर चाहिए था, तो ये ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, तो इसको नेचुरल होना पड़ेगा. इफ यू रिमेंबर, ये रूट ओवर कैंसिल होना चाहिए. 2n प्लस 31 शुड बी ए स्क्वायर. ऑप्शन में से आप देख लो. अब आपके मन में आएगा सर व्हाट इफ ऑप्शंस आर नॉट गिवन? तो आपको 2n प्लस 31 को स्क्वायर बनाना है. तो 1 रख के देखो, तो ये बन गया 4. 2 33 नॉट अ स्क्वायर. 2 रख के देखो 35. 3 रख के देखो 37. तो दो बढ़ रहा है. अगली बार 39, अगली बार 41, 43, 45, 47, 49. ये 49 बन के पहली बार स्क्वायर बनेगा. If options are not given and you want to solve, this must be a square. जब तक ये स्क्वायर नहीं आएगा तब तक ये नेचुरल नंबर कैसे बनेगा? These are CAT level questions. What concept did we use? We used the concept of arithmetic progression. First number plus last number upon 2 is the average. Average into number of terms, 32 is equal to total, or total value must be a square. Very beautifully framed question. इनसे आगे बढ़े. Try this. The number 44 is written as product of 5 distinct integers. If n is the sum of these 5 integers, then what is the sum of all possible values of n?
वाली लैंग्वेज पे ध्यान देना, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। So see, you not only have to write it in different ways, आपको उनका सम भी निकालना है, और सम के कितने वैल्यूज है, दैट इज द क्वेश्चन। देखो, पहली बात तो व्हाट इज 44? 44 इज 2 into 2 into 11। मुझे अलग अलग 5 डिजिट्स चाहिए, 5 डिजिट्स अलग अलग, और बाद में उन सब के मुझे सम चाहिए। आई नीड सम ऑफ ऑल दोज पॉसिबिलिटीज फॉर n। n क्या है? सम ऑफ दोज नंबर्स। अब देखो, क्योंकि अलग अलग आपको चाहिए, कैन आई से rather than using 2 and 2, एक -2 कर लो, एक +2 कर लो, एक 11 कर लो। अब नेगेटिव हो गया, एक -1 कर दो और एक +1 कर दो। डू यू सी 5 नंबर्स? अब ये जो माइनस प्लस है, इसका हम खेल कर सकते हैं। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी इज, क्योंकि देखो, एक -2 और एक +2 होना जरूरी है, एक -2 और एक +2 होना जरूरी है, क्योंकि यू मस्ट हैव डिस्टिंक्ट डिजिट्स। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू मूव माइनस टू 11? मैं जैसे ही 11 पे माइनस करता हूं, तो ये दोनों 2 सेम हो गए, आइदर ये हो जाएगा या तो फिर ये दोनों 1 में से कोई एक सेम हो जाएगा, विच इज नॉट वैलिड। तो लकीली एक ही तरीका आपके पास, देयर इज ओनली वन पॉसिबल वे टू ब्रेक इट डाउन। और आपको चाहिए सम ऑफ दीज नंबर्स, -1 +1 -2 +2 +11। नंबर ऐसा चुना गया है 44 selected, which is 2 into 2 into 11, which is 2 into 2 into 11।
let P be the set of all odd positive integers such that every element of P satisfy the following conditions. P पहली बात तो क्या है, is a set of odd positive numbers, odd positive numbers. और क्या condition satisfy करने हैं? It should be between 100 and 1000. Basically, it is a 3-digit number. P is a 3-digit number which is also odd. 100 से ऊपर चाहिए, 1000 से below चाहिए. The digit in the hundreds place is never greater than the digit in the tens place, which is also never less than digit in the units place. How many elements are there in P? जो 100 place का value है, अगर ये greater नहीं है than tens place, greater नहीं है मतलब ये less than equal to है. Similarly, also tens place, also never less than digit in the units place. फिर से पढ़ते हैं. The digit in hundreds place is never greater than the digit in the tens place. Also never less than digit in the units place. तो unit वाले place से भी ये कभी less नहीं होगा. Never less बोला है, never less. मतलब क्या होगा? A is more than equal to C. तो यार ये कैसा पॉसिबिलिटी है कि आप नंबर्स में डिजिट में इनइक्वालिटीज बना रहे हो? भाई यही तो खेल है. ऑब्जर्व, these kind of questions can be done through permutations and combinations sometimes. वो डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हो पीएनसी में. These kind of questions can be done through patterns always. पैटर्न आप देखो मिल रहा है क्या आपको? देखो आपने कहा a is less than b, a is more than equal to c. a का मिनिमम वैल्यू क्या है? 1. उल्टा सोचो, b से शुरू करो. b जो है b is more than equal to a is more than equal to c. ये बात हो रही है. तो b is the largest number. मैं स्टार्ट कर रहा हूं b से. मैं आपको पैटर्न बना देता हूं. ये मैंने b को लिखा, यहाँ a को लिखा, यहाँ c को लिखा. अगर b का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू मोर देन लेस देन इक्वल टू हो सकता है. तो a की पॉसिबिलिटी है 1, 0 तो हो नहीं सकता. अब देखो, क्योंकि a is more than equal to c can be 1 or 0. नंबर कैन बी 111 और नंबर कैन बी 110. लेकिन आपने क्या कहा? ऑड. मतलब कि ये 0 चला गया, देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी. मैंने अगर ध्यान से, अगर मैंने b को 2 ले लिया तो डू यू अंडरस्टैंड? a कैन बी 1 और 2 बोथ. a कैन बी 1 और 2 बोथ. अब जो c का वैल्यू है, इट मस्ट बी ऑड. c का वैल्यू मस्ट बी ऑड. तो डू यू सी, अगर ये 1 और 2 भी है, अगर ये 1 है तो c इज 1. अगर ये 2 है तो भी c कितना है? 1. तो how many possibilities are there? 2 possibilities, 1 possibility, 1 possibility. There are 2 numbers. There are 2 numbers like this. If I take b is equal to, please observe, if I take b is equal to, let us say 3. तो a can be 1, a can be 2, a can be 3. थोड़ा संभल के. जब a 1 है तो c 1 है. जब a 2 है तो c 1 है. c cannot be 0. c cannot be 0. 1 and 1 एक ही बात है. 1 and 1 एक ही बात है. But when a is equal to 3, so do you see c can be 1 or c can be 3? तो मैन्युअली गिनना पड़ रहा है. देखो, अगर ये 1 है, ये 3 है, ये 1, इट इज ओके. ये 2 है, ये 3 है, ये 1, इट इज ओके. तो 2 नंबर बन गए. लेकिन जब आपने इसको 3 लिया, इट कैन बी 1, इट कैन बी 3. 3 लिया आपने, 3 3 1 3 3 3. कितने नंबर बन गए? 4 नंबर. यू वांट टू राइट दिस नीटली? 1 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 3. 4 नंबर. 1 2 4 हो गया. 1 2 4 हो गया. If b is equal to 4, हमें सारे ऑड चाहिए ना एलिमेंट्स. If b is equal to 4, a can be 1 2 3 4. अब देखो सुनो, 3 तक तो आप कर चुके हो ना. ये 3 तक आप कर चुके हो ना. 3 तक कितने नंबर होते हैं? 4. 3 तक होते हैं 4 नंबर. 3 तक देयर आर 4 नंबर्स. 1 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 3. अब एक 4 आ गया ना. 4.
अगर ये 4 आ गया तो व्हाट कैन बी देयर, 1 कैन बी देयर, 3 कैन बी देयर, तो 2 नंबर बढ़ गया आपके, तो ये 6 बन गया, ये 6 बन गया। अब देखो पैटर्न बनना शुरू किया, 2 4 6, 2 4 6, तो अगला क्या आएगा, देखो ये आपने 5 ले लिया, तो दिस इज 1 2 3 4, आपने 4 तक तो 6 बना दिए ना, 4 तक तो आपने 6 बना दिए। अब जब यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 आएगा, तो दिस कैन बी 1 3 और 5, तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, मतलब ये कितना हो गया, 9। देखो क्या पैटर्न बना, +1 +2, यहाँ पर आई टू चेक, +2 बन रहा है, फिर +3 बन रहा है, मैनुअली बहुत लंबा बढ़ रहा है। कंप्लीट दिस, कंप्लीट दिस। अगली बार ये बन जाएगा 6, तो 1 2 3 4 5 तो आप कर चुके हो, 9 नंबर्स। अगली बार जब ये बन जाएगा 6, ए बन जाएगा 6, तो बी के पास होंगे वैल्यू 1 3 5। तो ऐसा है, पहले में 1 बना, दूसरे में 2, अगले में 4, अगले में 6, अगले में 9, तो ऐसा पैटर्न बन रहा है, +1 +2 +2 +3 +3। अगली बार क्या होगा, +4 +4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 तक आ चुके हैं बी के वैल्यू को, बी का जब 9 होगा तो यहाँ +5 हो जाएगा। इन सबका एडिशन इज योर आंसर, 25 45 45 + 16 61 61 + 12 73 73 + 9 82 82 प्लस ये हो गया 10 92 92 + 3 हो गया 95। कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशंस भी लगाओगे, क्योंकि ए का वैल्यू मोर देन सी चाहिए एंड सी मस्ट बी ऑड, दैट विल टेक टाइम। क्या उल्टा सोच सकते हैं, कैन वी थिंक रिवर्स? क्योंकि हमें c का वैल्यू ऑड चाहिए, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू, इनको मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं कंसर्न हूं विद वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ a। जो a का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए या बराबर हो सकता है, तो a कैन बी 1 2 3, a कैन गो अप टू 9, a कैन गो अप टू 9। जो b का वैल्यू है वो a के बराबर या उससे भी ऊपर होना चाहिए, तो ये मैन्युअली करना पड़ेगा, थोड़ा संभल के। लेट मी डू दिस फॉर यू। हमने पैटर्न डिराइव किया, लंबा हुआ बट पैटर्न डिराइव किया। अब अगर a का वैल्यू 1 है तो b कैन बी 1 अप टू 9 एनीथिंग, तो 9 सॉल्यूशंस आ गए। a अगर 2 है, प्लीज ऑब्जर्व, प्लीज लर्न, a अगर 2 है तो b कैन बी 2 अप टू 9, 8 वैल्यूज आ गए। a अगर 3 है तो b कैन बी 3 अप टू 9, कितने वैल्यूज आ गए, 7 वैल्यूज आ गए। तो a अगर 8 है तो b कैन बी 8 और 9, 2 वैल्यूज आ गए। a अगर 9 है तो b 9 है, एक वैल्यू आ गया। तो व्हाट इज द एडिशन, 45। c इज इक्वल टू 1 वाले 45 नंबर्स हैं। अगर c इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, इफ आई टेक c इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू क्या होगा, उससे ऊपर की तरफ जाएगा। तो a कैन बी 3 4 5 6, तो मैं एक एक करके करता हूं आपके लिए। when a is equal to 3, तो b कैन बी 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर हैं ये 7 नंबर है। when this can be 4, तो ये जाएगा 4 to 9, ऐसे कितने नंबर होंगे, 6 नंबर होंगे। ये कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। 7 into 8 upon 2, 7 into 8 upon 2, 28 नंबर आएंगे। जब ये 5 है, when this is 5, तो ये शुरू कहां से होगा, 5 6 7 8 9 चलेगा। जब ये 5 है, it will go from 5 to 9, कितने नंबर होते हैं 5 to 9, there are 5 numbers। जब ये 6 है तो यहाँ 6 to 9 होगा, how many numbers are there, 4 numbers। तो क्या हो जाएगा, 5 into 6 upon 2, 15। ये 7 है तो ये 7 होगा, तो it can be 7 to 9, 3 possibilities। ये 8 है, ये 8 है तो it can be only 8 9, 2 possibilities।
तो 3 2 1 विच इज बेसिकली 6, और आखिरी में अगर ये 9 है तो ये 9 9 ही होंगे, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। इनको ऐड कर लो, आपका आंसर फिर से सेम आएगा। दिस इज एडेड 60, ये 60 है, ये 34 है, which is 34 and 60, 94 plus 1 95। टेक योर टाइम, इसको अच्छे से लिखो। अब देखो बेटा, ये कैट लेवल है, कैट के क्वेश्चंस बना रहे हो, बट क्लासरूम में लोग नहीं बना रहे हैं, ये रेगुलर बैचेस रेगुलर कोचिंग्स में आना तो ये है। Once I leave this slide, I cannot come back to this. Done. Moving away. Try this. While multiplying three real numbers, Ashok took one of the numbers as 73 instead of 37. As a result, the product went up by 720. Then the minimum possible value of sum of squares of other two numbers is. दूसरे दो नंबरों के sum of squares का minimum value क्या है? Sum of squares का minimum value क्या है? तो इनसे कहा गया था कि आप a into b into 37 करो। इन्होंने गलती से a into b into 73 कर दिया। Because of this, the result increased by 720. This is what happened. A and B are the two numbers and the third number is
37, 73. So I can write 720 as A into B bracket 73 minus 37. कितना होगा? तो ये माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे 13, 6, ये माइनस करेंगे 6, तो ये 3 into A into B is equal to 720. तो A और B का मल्टीप्लीकेशन 72 है. अब वर्डिंग पे ध्यान देना. ऑन मल्टीप्लाइंग 3 रियल नंबर्स, कहीं पे नेचुरल बोला है, कहीं पे इंटीजर बोला है, नहीं ना. तो आप क्यों अज्यूम करोगे इसको 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5, सब क्यों अज्यूम करोगे आप? आपसे रियल नंबर बोला है, रियल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कहीं नहीं बोला है, इंटीजर्स कहीं नहीं बोला है. अब ये क्वेश्चन जो है इट बिकम्स अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन. अगर दो नंबरों का a और b का स्क्वायर आपको दिया रहा है अपॉन 2, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन. इट विल बी मोर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a square into b square. So a square plus b square will be more than or equal to 2 into ab. What is a into b? 20. It is going to be 2 into 20 which is 40. क्या सवाल है? What is the minimum possible value of sum of squares? तो जो sum of squares हैं वो more than equal to 40 है. more than equal to, तो minimum value क्या हो जाएगी? 40. नहीं तो आप क्या गलती कर बैठोगे? आप नेचुरल नंबर लेके अज्यूम करके चेक करते बैठोगे, एक भी आंसर मैच नहीं होगा आपका. क्योंकि इनमें से देखो, अगर आप 1 और 20 लेते हो, 1 और 20 दोनों के स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 1 और 400. तो 401 बन गई वैल्यू. 2 और 10 लेते हो तो इट विल बिकम 4 and 100, 104 हो गई वैल्यू. 4 और 5 लेते हो तो 16 and 25. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इफ देयर आर 100 पीपल अपीयरिंग कैट, उसमें से अगर 20 लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं तो 20 में से 19 लोग ये करके आएंगे. दे विल मार्क दिस एज आंसर. आंसर ये बेटा. एएमजे पढ़ा है आप लोगों ने. अरिथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. सबसे बड़ा हिंट क्या था यहाँ पे? रियल नंबर्स कहा है. रियल नंबर्स. रियल नंबर्स तो सर्ड्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं, डेसिमल्स भी होते हैं. आपको चाहिए तो यू कैन पोस्ट दिस क्वेश्चन इन व्हाटएवर ग्रुप यू आर एक्टिव इन. आपको आंसर 41 ही मिलेगा. 99% चांस 41 मिलेगा आपको आंसर, व्हिच इज रॉन्ग. टेक योर टाइम, कंप्लीट दिस. वो रियल नंबर पकड़ के हमें समझ में आया. इट इज एएमजीएम कॉन्सेप्ट. Confirm done, so we can start the next problem. Sum of squares of two numbers is 97. Which of the following cannot be their product? Sum of squares of two numbers is 97. Which of the following cannot be their product?
I have kept these questions one after other because they are identical in approach, identical in language. आप कह रहे हो दो नंबरों के स्क्वायर का एडिशन 97 है, तो जब आप अरिथमेटिक मीन लोगे ऐसा, इट इज मोर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। आप जब स्क्वायर रूट कैंसिल करते हो तो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। यहां पर क्या था, सुनो, आप दोनों के स्क्वायर का एडिशन निकाल रहे थे। कैन एडिशन ऑफ स्क्वायर्स बी नेगेटिव? क्या एडिशन ऑफ स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नो, इसीलिए मैंने नेगेटिव चेक नहीं किया। लेकिन जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिखोगे, कैन आई राइट ए इंटू बी स्क्वायर एज रूट? थोड़ा संभल के, मोर देन और इक्वल टू, ये 97 होता क्या? 97 होता है अपना 47.5, 48.5, ये लो। अब जब आप रूट ओवर कैंसिल करोगे तो ए बी का जो वैल्यू है, अंडरस्टैंड, इट विल बी बिटवीन 48.5 एंड 48.5। अब देखो इनमें से कौन सी वैल्यू इस रेंज के बाहर है? 48.5 से कम है, यस। माइनस 48.5 से ज्यादा है, यस। क्या इन दोनों के बीच में 16 आता है? यस। ये वैल्यू इनके बीच में नहीं आती है। यू आर सॉल्विंग एक्चुअल कैट क्वेश्चंस, तो यू नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ AMGN, AMGM to solve these questions. एक एक क्वेश्चन दो सवा दो मिनट का है, नॉट मोर देन दैट। अगर लेटर ऑन आप में से कोई रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू कीप अप विद दिस, बेटा वापस जाओ, एल्जेब्रा रिवाइज करो। So people who tell you arithmetic is most important, झूठ बोल रहे हैं आपसे। एल्जेब्रा नेगेटिव वाला पार्ट क्यों लिया हमने? क्योंकि अगर प्रोडक्ट है दो नंबरों का, प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव, एडिशन ऑफ स्क्वायर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। डन है। ये बहुत इजी है, कैट का पास्ट कैट, वेरी इजी, 10 सेकंड में कर देते हैं। देखो आप कह रहे हो 4 की पावर n इज मोर देन 17 की पावर 19। आप n के लिए पूछ रहे हो। कैन आई से जो 17 इटसेल्फ है, ये 4 के स्क्वायर से भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 4 की पावर में कन्वर्जन चाहिए, 4 की पावर, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, 4 की पावर 38 से थोड़ा ज्यादा होगा। देखो विच ऑप्शन? ऐसे क्वेश्चन अगर कैट में अभी आपको मिलते हैं, यू आर वेरी लकी। ये प्रोवाइड 2017-18 का क्वेश्चन आप देख रहे हो अभी। 4 की पावर n इज मोर देन 17 की पावर 19। बेसिकली जो 17 इटसेल्फ है वो 4 स्क्वायर के नजदीक है, नजदीक मान लो, चलो नजदीक मान लो 4 स्क्वायर, ये 4 की पावर चाहिए, तो इट बिकम्स 4 की पावर 38। नजदीक है लेकिन ऊपर है, तो 4 की पावर 38 से ऊपर होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर व्हाट इफ देयर आर मोर ऑप्शंस? तो बेटा आपके और हमारे स्टैंडर्ड से अब ये सॉल्वेबल नहीं है। इसको ट्राई करने के लिए यू विल नीड आइदर एडवांस नॉलेज ऑफ बाइनोमियल और एडवांस नॉलेज ऑफ लॉगरिथम। ये तो नहीं बनेगा हमसे ये। If there were more options which were 39, 40, 41, 42 ऐसे और ऑप्शन होते, तो ये आपके और हमारे लेवल पे सॉल्वेबल नहीं है। You and I cannot solve this.
Moving on. Try this. Give it a shot. अलग तरह का सवाल है, ये नोटिस आपको ना प्राइम नंबर्स के नॉलेज चाहिए. कौन से प्राइम नंबर्स? विच आर 2-digit प्राइम नंबर्स. तो इफ यू रिमेंबर नंबर्स के पहले लेक्चर में आई हैड हेल्प्ड यू विथ प्राइम नंबर्स अप टू 100, वो इसीलिए करवाया था. प्राइम नंबर्स अप टू 100 बहुत कॉमन है, बहुत यूज होते हैं. क्या क्या लैंग्वेज है, क्या क्या कहा जा रहा है. देखो, AB is a 2-digit prime number such that one of the digits is 3 and the difference between the two digits of the number is not a factor of 2. Not a factor of 2 मतलब 2 का गैप नहीं होना चाहिए. 2 का फैक्टर क्या होता है? 2 का डिवाइजर 1 और 2 होता है. मतलब जो उनके बीच का गैप है वो 1 और 2 नहीं होना चाहिए. दैट्स इट. तो पहले तो आप प्राइम नंबर लिखो. मैं भी ट्राई करता हूँ. 2 डिजिट चाहिए. 11, 13, ये 12 के नजदीक. अगला क्या होगा? 18. तो 17, 19. अगला क्या होगा? 24. 24 मतलब अगला क्या होगा? 20. हाँ करेंगे ना, पहले प्राइम लिख तो दो. मैं ये 24. अगला आएगा 30. 30 आएगा तो -1 + 1. 29, 31. 30 का अगला 36. एक ही प्राइम आएगा 37. और आगे देखना है अपने को. 36 के बाद 42. तो एक आएगा 41, एक आएगा 43. और अगला 42 के बाद 48. तो 47 इज प्राइम, 49 इज नॉट. 54, 53 इज प्राइम. और आगे जाएं. 54 का 60. तो 59 इज प्राइम, 61 इज प्राइम. अगला 60 के बाद 66, 67 इज प्राइम. अगला 72, 71, 73 बोथ आर प्राइम्स. 72 के बाद 78, 79 is prime. 78, 84, 84 तो 83 is prime, 85 is not. 90, 90 में 89 is prime, 91 is not. 90 के बाद 96 तो 97 is prime. ये हमारे प्राइम नंबर है सारे 2 डिजिट वाले. हमें क्या डिजिट चाहिए? 3. तो ये कट गया, ये सारे कट गए, ये आ गया, ये कट गया, ये आ गया. अब इनमें क्या देखो, इनमें 2 का डिफरेंस है. 2 का डिफरेंस तो 2 तो इसका फैक्टर है ना, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते, इसे नहीं कर सकते. इनमें डिफरेंस कितना है? 1. तो 1 भी तो इसका डिवाइजर है, हम इसे भी काउंट नहीं कर सकते. ये कितना डिफरेंस? 4 है. क्या 4 डिवाइड करता है 2 को? 4 डिवाइड नहीं करता, तो ये काउंट करना. ये होना नहीं है. इनमें कितना गैप है? 1. 1 तो डिवाइड करता है, हटाओ. इनमें कितना गैप है? 2. 2 डिवाइड करता है, ये काम नहीं आएंगे, ये काम नहीं आएंगे. कितना गैप है इनमें? 4. 4 का गैप है इनमें, ये रहा, हो गया. ये नहीं हो सकते. इनमें कितना गैप है? 5 का. क्या 5 डिवाइड करता है? नहीं, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा. तो मैंने जो टिक लगाया 1, 2 और ये 3 काउंट होंगे. अब दूसरा तरीका क्या होता है इसे बनाने का? आप फर्स्ट प्लेस पे 3 लिख दो. अब देखो 1 और 2 नहीं ऐड करना है, 1 और 2 ऐड नहीं करना है. आप 3, 4, 5 ऐड कर सकते हो. 3 ऐड कर दो, इसमें 6 बन गया. 4 ऐड कर दो, 7 बन गया. 5 ऐड कर दो, 8 बन गया. तो देखो ये तो नंबर इवन है ना, कैन नॉट बी प्राइम. 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, 6 ऐड कर दो, ये भी डिविजिबल है. 7 ऐड कर दो, 3 + 7 10 हो गया. अब तो कर नहीं सकते, ओनली वन पॉसिबिलिटी. अगर पीछे 3 है तो आगे ऐड करो, +1 करोगे
43 1 तो कर नहीं सकते, 2 ऐड करोगे 53, 2 नहीं कर सकते ऐड, 1 तो ऐड हो नहीं सकता, 3 ऐड करोगे तो ये प्राइम नहीं है, 4 ऐड करोगे तो ये प्राइम है, 5 ऐड करोगे तो ये प्राइम है, 6 ऐड करोगे तो 93 इज नॉट अ प्राइम, उससे आगे जा नहीं सकते, 3 नंबर आ गए आपके। एक तो मैंने क्या तरीका सोचा, प्राइम लिख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वन ऑफ द डिजिट इज 3, आपने कह दिया 3 को यहाँ रख दिया, 3 को यहाँ रख दिया, 1 और 2 ऐड कर नहीं सकते, 1 और 2 माइनस भी नहीं कर सकते, आप 3 से ऐड करना शुरू करो, 3 ऐड करो 36, 4 ऐड करो 37, 5 ऐड करो 38 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। एक ही पॉसिबिलिटी 37, 73 83 दो पॉसिबिलिटीज हैं, बट ये नंबर प्राइम है कि नहीं आपको पता होना चाहिए। देन फर्स्ट अप्रोच में आपने प्राइम पहले लिख दिए, मूविंग ऑन, ये ट्राई करो। Find the two-digit number that exceeds 12, the sum of the square of its digits, and 16 by double of the product of its digits. क्या कह रहे हैं, टू डिजिट नंबर चाहिए, n is a two-digit number that exceeds 12 by the square by the sum of square of its digits. अगर ये ab है which is 10a plus b basically, ये जो नंबर है अपने ही डिजिट्स के स्क्वायर्स के सम से 12 ज्यादा है. दिस इज द हिंट गिवन टू यू. अ टू डिजिट नंबर exceeds by 12 the sum of square of a digit, ऐसा, and 16 by the product of its digits. ये बातें हो रही हैं आपसे, ऐसा कहा जा रहा है. अब देखो आप सोचो कैसे लगाओगे, ट्रायल एरर कैसे करोगे इसको सॉल्व. हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन. 10a plus b is the two digit number. ये अपने ही डिजिट के स्क्वायर से 12 ज्यादा है और अपने डिजिट के प्रोडक्ट से ये 16 ज्यादा, 16 मोर. आपको ऐसा टू डिजिट नंबर निकालें, नीड टू फाइंड सच अ टू डिजिट नंबर.
देखो जाहिर सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. You either start replacing values or you notice some pattern that clicks, कुछ प्लस माइनस क्लिक कर जाए आपको. वैसे दिखाता हूँ, क्योंकि b इंडिविजुअल है, ये 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल इज ऑलवेज इवन. अगर b ऑड होता, अगर b ऑड होता तो मतलब आपका एक्चुअल नंबर ऑड है. तो अगर b, ध्यान से देखो, अगर b ऑड है तो ये ऑड है, ये ऑड है. आपको पूरा ऑड चाहिए, पूरा ऑड चाहिए, तो a मस्ट बी इवन. यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये ऑड है, आपने b को ऑड ले लिया और आपने a को इवन ले लिया. आपने ऊपर प्रूव किया ना a मस्ट बी इवन, तो ये बन जाएगा इवन प्लस 16. इवन प्लस 16 कैसे ऑड होगा? दिस प्रूव्स b मस्ट नॉट बी ऑड. दिस प्रूव्स b मस्ट नॉट बी ऑड. थोड़ा सांस से लो, सोचो. या तो 1 2 3 4 5 जो मन पड़े पुट करो. अगर b ऑड होता, ऑड है तो इवन है, दो ही पॉसिबिलिटी है b के लिए. अगर b ऑड होता तो पूरा नंबर ऑड होता. तो अगर ये ऑड है तो ऑड का स्क्वायर भी ऑड है. अब मुझे क्या चाहिए? 12 प्लस ए स्क्वायर प्लस ऑड, मतलब a को इवन होना पड़ेगा. इवन प्लस ऑड प्लस इवन इज ऑड. अगर a ऑड हो गया तो ये पूरा इवन बन जाएगा ना. a इवन है, अब a इवन है, b ऑड है, तो ये तो इवन बन गया ना. तो b कैन नॉट बी ऑड, मतलब b कैन बी आइदर 0, b कैन बी 2, b कैन बी 4, b कैन बी 6, b कैन बी 8. अब मैं एक एक करके ट्राई करना शुरू करता हूँ, रादर देन मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ, और अच्छी बात है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 12 इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस 16. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस 4. अब अगर आपने देखो, अगर आपने b को 0 ले लिया, इफ यू टेक b इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बन गया, a इज इक्वल टू 2 बन गया, तो मेरा नंबर आ गया 20 20. आप देखो, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 0, क्या ये उससे 12 ज्यादा? एक बार चेक करो. इज इट 12 मोर देन दैट? मैंने b को 0 ले लिया, b को मैंने 0 ले लिया, तो a स्क्वायर आ गया 4, a इज इक्वल टू 2. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना. 20 है, यहाँ 16 है, पॉसिबल ही नहीं है. देखो, और आगे बढ़ते हैं. तो b कैन नॉट बी 0, b को मैंने 2 ले लिया, b को अगर मैं 2 ले लूं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 4. ये कट गया. देखो, a जो है, a 0 तो हो नहीं सकता, a इज इक्वल टू आ गया 2, तो नंबर आ गया 24. एक बार चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 12. अब देखो ये मैच हो रहा है क्या? एक बार, इज दिस मैचिंग फॉर यू? क्या ये मैच हो रहा है? b को मैंने 2 ले लिया, नहीं हो रहा ये भी मैच, तो b कैन नॉट बी 2. एक ही नंबर आएगा बेटा, एक ही नंबर आएगा. b इज इक्वल टू 4 ले लो, तो टेक b इज इक्वल टू 4. 2 मैच नहीं हुआ, ये कैट है, दिस इज कैट लेवल. b इज इक्वल टू 4 ले लिया मैंने, तो व्हाट आई हैव इज a स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 4a प्लस 4. इनको इधर ले आता हूँ, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 12 इज इक्वल टू 0. देखो इंटीजर बनता भी है क्या? ऐसा कोई इंटीजर है क्या? देखो, इंटीजर तब बनेगा ना जब डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर होगा. डेल्टा क्या होता है? 16 माइनस 4 इंटू दिस. ये तो इमेजिनरी बन गया, दिस इज इमेजिनरी वैल्यू. ये इमेजिनरी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो b कैन नॉट बी 4. 6 और 8 रख के चेक कर लो. इफ आई पुट 6, a स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 6a प्लस 4. इसको इधर ले आओ, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 32 इज इक्वल टू 0. ये 36 माइनस क्या होगा ना? 128. नॉट पॉसिबल. 8 रख के देखो, a स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 8a प्लस 4. इसको इधर ले आओ, तो व्हाट आई हैव इज a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 60 इज इक्वल टू 0. ऐसी कोई वैल्यू नहीं बन रही है, देयर इज नो सच वैल्यू.
There is no such value. थोड़ा एडवांस है, थोड़ा टाइम टेकिंग है. नो सच वैल्यू, नो सच. वैसे ऑप्शन दिया नहीं बाबा, क्वेश्चन फ्रेम किया है. एक बार प्लस माइनस चेक कर लेते हैं, एक बार आपने प्लस माइनस हमने सही किया है क्या. b को 0 पुट किया तो a इज इक्वल टू 20 आया, 20 आ गया तो 12 मोर देन एडिशन ऑफ डिजिट्स नहीं आ सकता, गॉन. b को 2 ले लिया तो a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 4, 4 4 कट गया, a इज इक्वल टू आ गया तो a इज इक्वल टू 2, मतलब कि 22. 22 क्यों नहीं चेक किया हमने, 22 क्यों नहीं चेक किया. अगर 22 मेरा नंबर आ रहा है, यहाँ आ रहा ना, देखो ना, a इज इक्वल टू 2 आ रहा है, व्हेन b इज इक्वल टू 2. 22 में देखो आप, 22 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12, 8 प्लस 12 20. हाँ 22 नहीं मैच हो रहा. 2 इंटू 2 प्लस 16, 4 प्लस 16 20, नो 22 नहीं मैच हो रहा. 4 पुट कर दिया हमने, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो इधर आ गया माइनस 4a प्लस 12, माइनस 4a प्लस 12. इसका तो रूट इमेजिनरी, इसके बाद सारे रूट इमेजिनरी आ गए, 6 पुट करके भी, 8 पुट करके भी. Sum of square is not possible, no such number possible. Yeah. When we multiply a certain 2-digit number by the sum of its digits, we get 405. If you multiply the number written in the reverse order with same digits by sum of its digits, you get 486. Find the number. कोई एक नंबर है 2 डिजिट, तो उसकी वैल्यू तो ये होगी, तो उसका जो रिवर्स वैल्यू होगा BA, उसका वैल्यू ये होगा. आप दोनों केस में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, सम ऑफ डिजिट्स. यू आर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ डिजिट्स इन बोथ केसेस. एक में क्या बन के आ रहा है 405, एक में क्या बन के आ रहा है 486. तो ध्यान से, क्योंकि दोनों में a प्लस बी कॉमन है, तो राइट साइड में a प्लस बी दिखना चाहिए ना, तो इसको ब्रेक डाउन करो. ये मल्टीपल दिख रहा है मेरे को 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू 81, तो 5 इंटू 9 इंटू 9, ये 5 का मल्टीपल तो है नहीं, इनमें से कुछ दिखना चाहिए. इज इट अ मल्टीपल ऑफ 9? यस, ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे. 9 इंटू 5, 5 टाइम्स 45, 36, 54. बन गया आपका सवाल. देखो a प्लस बी इज 9, तो ये 45 है. देखो 45 इंटू 9, 54 इंटू 9, so a प्लस बी इज 9, द नंबर्स आर 45, 54. आपको फाइंड द नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर इज 45. क्या क्लिक हुआ मुझे भी, rather than searching for these values in dark, दोनों ही केस में व्हाट आर वी मल्टीप्लाइंग, एडिशन ऑफ डिजिट्स, a प्लस बी. तो a प्लस बी दिखना चाहिए ना प्रोडक्ट में, तो मैंने फैक्टराइज करना शुरू कर दिया. मुझे दिख रहा है 5 का मल्टीपल है, मैंने 5 निकाला, तो 5 का मल्टीपल निकला तो बच गया 9 इंटू 9. अब नीचे का नंबर तो 5 का मल्टीपल है नहीं, तो मुझे 9 का मल्टीपल दिख गया, बच गया 54. तो नीचे 54 ऊपर 45 दिखना चाहिए. दैट वर्क्स फाइन. नंबर पकड़ लिया आपने. 45 into 9, 54 into 9. 9 is the addition of digits, 5 plus 4, 4 plus 5. इसके लिए थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम सिखाना पड़ेगा मुझे आपको.
आपका नेक्स्ट लेक्चर ही काउंटिंग फैक्टर्स पे रखेंगे। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या कह रहा है, बिना उसके भी ट्राई कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू सॉल्व। ये काफी एडवांस क्वेश्चन है, इसके लोगों ने जुगाड़ लगा लिए हैं, बट वो आंसर बताया तो कुछ भी कर रहे हैं। प्रॉपर फुल प्रूफ सॉल्यूशन बहुत कम लोगों के पास है। सम ऑफ 4 consecutive 2-digit odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square. Which of the following can be one of these four numbers? आप क्या कह रहे हो, आपके पास 4 नंबर हैं जो कि consecutively odd है, consecutively odd। इनके एडिशन को आप 10 से डिवाइड करते हो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब ये नंबर अगर यहाँ पे ऑप्शंस में इनमें से एक हुआ, उसकी भी 4 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये सबसे बड़ा नंबर हो सकता है ये थर्ड नंबर हो सकता है ये सेकेंड नंबर हो सकता है ये फर्स्ट नंबर हो। तो ये अगर आंसर आपका होता भी तो आपको 4 केसेस चेक करने पड़ेंगे। अगर ये आपका आंसर होता तो 25 कैन बी द लार्जेस्ट नंबर, कैन बी, अगर ये 21 है तो ये 19 है, 17 है, 18 है, 17 है और ये 15 है, चेक कर लो ऐड करके। बट 4 पॉसिबिलिटीज कोई क्यों चेक करेगा? वन ऑफ दीज 4 नंबर्स पूछ रहा है, तो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ पैटर्न। आपको ये समझ में आता है, जब भी ऑड नंबर्स होते हैं तो उनके आखिरी में 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, फिर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। आई एम गिविंग यू अ जुगाड़ मेथड विच इज फुल प्रूफ। इसमें गलती नहीं हो सकती आपसे। आप क्या कह रहे हो, जब मैं इनको ऐड करके 10 से डिवाइड करूंगा, 10 से डिवाइड तभी होगा ना जब उसके एडिशन के आखिरी में 0 आएगा। अगर ये 4 नंबर होते, ये उनके यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस। 1 + 3 + 5 + 7, देखो 0 बनता है क्या? 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16। मतलब कि 1 से शुरू होने वाला नंबर कभी आगे नहीं आएगा, ऐसा 21 कभी आगे नहीं आएगा क्योंकि एडिशन में 0 नहीं बना। अगर ये 4 नंबर होते, कंसेक्यूटिव बोला है ना, कंसेक्यूटिव 13 15 17 19 ऐसा हो सकता है, 23 25 27 ऐसा हो सकता है। 3 + 5 8, 8 + 7 15 + 9 24, आखिरी में क्या बन गया 4। मतलब 3 से शुरू नहीं हो सकता आपका नंबर, कभी शुरू नहीं होगा 3 से। 5 7 9 1, देखो एक बार आप, 5 + 7 12, 12 + 9 21 + 1 22, 7 9 1 3, 7 + 9 16, 16 + 1 17, 17 + 3 20। आपका 0 बना कि नहीं, देखो आप। मतलब आपके जो भी नंबर्स हैं, 4 नंबर होंगे आपके, 4 नंबर्स, उनका यूनिट पोजीशन जो है वो ऐसा होगा। इसमें यूनिट में 7 होगा, 9 होगा, 1 होगा और 3 होगा। अगर मैं 9 से शुरू करूं, 9 + 3 + 5, देखो फिर से 9 + 1 10, 10 + 8 18, 0 नहीं आया। फिर अगला 1 3 5 7 होगा ना, 1 3 5 7 चेक कर चुके हो। तो अकेली ये पॉसिबिलिटी आपके पास, इसका एडिशन में 0 आएगा आखिरी में, 10 से डिवाइड करके स्क्वायर बनना चाहिए। देखो अगर ये ऑप्शन सही होता, अगर, तो ये यहां बैठता, इनका एडिशन आता 80, 80 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर बन सकता है क्या? नहीं। 80 डिवाइडेड बाय 10 इज 8, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो 5 तो डिजिट में आ ही नहीं सकता, 5 इज नॉट पॉसिबल। क्या आ सकता है 41, अगर 41 आएगा तो यही आएगा, पोजीशन फिक्स हो गई ना। तो 4 पॉसिबिलिटीज नहीं है आपके पास अभी, 41 43 39 37। देखो एडिशन, देखो एपी बनता है, एपी में एडिशन इनका हो गया 80 + 80 160, 160 बाय 10, इज इट अ स्क्वायर? यस, ये रहा आपका आंसर। आपको स्क्वायर भी तो निकालना है ना वहां पे। टेक योर टाइम, ऑब्जर्व दीज स्टेप्स।
पहले मैंने वेरीफाई किया यूनिट प्लेस में क्या आ सकता है, अकॉर्डिंगली वी क्रिएटेड पॉसिबिलिटीज। नहीं तो एक एक नंबर के 4-4 सेट चेक करने पड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ। दिस क्वेश्चन यू ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड विथ मी अर्लियर इन अलजेब्रा। गिव इट अ शॉट। इसके बाद डन करते हैं। Integers 1, 2, 3, 4, 5 up to 40 are written on a blackboard. The following operation is repeated 39 times. In each repetition, any two numbers, say A and B, currently on the blackboard are erased, and a new number, A plus B minus 1, is written. What will be the final number written on the board? ये लिखे हुए हैं। तो you are going to perform a operation 39 times. तो कैट वाला 39 टाइम्स तो आपको कुछ करने बोलेगा नहीं। यू आर एक्सपेक्टेड टू नोटिस पैटर्न्स। आपको कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करने, कोई भी दो नंबर, मर्जी आपकी, आपको उन दोनों को कट करना है और उनकी जगह पे एडिशन -1 करके नया नंबर रख देना। ऐसा करते करते व्हेन 39th ऑपरेशन इज डन, आखिरी में क्या बचेगा? तो रेदर देन डूइंग इट ऑन सच अ लार्ज सैंपल सेट, मैं छोटे स्केल पे करता हूं। इफ द नंबर्स आर ए बी सी डी, आपको चाहिए तो आप एक ई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी ई। 40 नंबर है तो यू आर परफॉर्मिंग 39 ऑपरेशंस। 5 नंबर है तो आई विल परफॉर्म 4 ऑपरेशंस। पहला पर्सन आया, उन्होंने किसी को भी, कोई भी दो, इन दोनों कट कर दिया और क्या लिख दिया? a प्लस डी माइनस 1, बी सी ई। एक ऑपरेशन हो गया आपका। दूसरा पर्सन आया, उसने लेट अस से इन दोनों कट कर दिया, तो क्या लिख दिया उनकी जगह पे? c प्लस ई माइनस 1। तो 2 ऑपरेशन हो गए आपके। एक और पर्सन आया, उन्होंने इनको कट कर दिया, a प्लस बी प्लस डी -1 पहले ही था, एक और -1 लगा के चला गया, -2। तो आपके 3 ऑपरेशन हो गए। अब चौथा पर्सन जो आएगा वो इन दोनों कट करेगा,
और इनको ऐड भी करेगा। तो डू यू सी ए बी सी डी ई सब ऐड हो गए। -2 -1 मतलब -3 पहले ही था, -2 -1 -3 पहले ही था, एक और माइनस लगा देगा। नाउ आर यू एबल टू सी अ पैटर्न। देखो आप 5 नंबर थे, आपने 4 ऑपरेशंस किए, हर बार 2 नंबर कैंसिल करके -1 लगाया, तो 4 बार -1 लग गया क्योंकि 4 ऑपरेशंस हैं। और अल्टीमेटली सबका क्या आ गया वहां पे, एडिशन। तो व्हाट इज द आंसर आई एम लुकिंग फॉर, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 40, सबका एडिशन चाहिए। और माइनस क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कितने हैं 39, ये आपका आंसर है। तो पहली वैल्यू हो गई 40 × 41/2 -39। इनको बोलते हैं ना एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपका आंसर है। कैंसिल कैंसिल, 820 -39। अगर ये 40 होता तो मेरे पास 780 होता, ये 40 से एक कम है तो 780 से एक ज्यादा आंसर आएगा। ये कैट का इक्वेशन है। No one in CAT will ask you to perform so many calculations. Confirmation on this. ये आपका होमवर्क है।